Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. 1 upon 1 minus the square of 3 by 4 will equals to 9 by 4, 16 whole upon that's 1 upon 1 plus the square of 3 by 4 equals to 9 upon 16. It will equals to the square of 4 by 5 equals to 16 upon 25. That's minus 3 by square of 3 by 5 equals to 9 upon 25. Okay. So taking the LCM of here 1 and 16, we can say that it is 16 divided by 16 divided by 1, it will equal to 16 divided by 1, it becomes 16 minus 16 divided by 16, it becomes 1 divided by 9 equals to 9. Like as we write here that 16 plus 9 whole upon 16. It will equal to, here we can say that the LCM is 25, then we can say that is 25, here 16 minus 9. 16 cancel by 16. 16 minus 9 equals to 7 upon 16 plus 9 equals to 25. So we can say that here 7 upon 25 equals to 7 upon 25. It's verified or it verified or so. Clear? Yes. Next away, question number 9. That's question number 9. In the question number 9, in triangle ABC, right angle at B. So we can say that it is a right angle at B. Draw a figure where here B is 90 and that's C and that's A. According to question, tan A equals to 1 by root. Here tan A equals to 1 by root B. And you also know that tan A equals to P by B. So we write here that's P by B. Perpendicular equals to 1 and base equals to 3. So here that's 1 and that's 3. According to Pythagoras theorem. So we can say that according to Pythagoras theorem, we can say that hypotenuse square equals to perpendicular square base. So the value of hypotenuse, I can't know about that. And the square of P equals to 1 and the square of B equals to 3. So we can say that here h square will be equals to 1 plus 3 and h square will be equals to 4. Here f equals to 2. Sorry, 2. Why we take here only 2? Because we know that distance is always positive. So take here h equals to 2. That's 2. According to part number first, we have to know about sin A, cos A, sin C. Clear? Yes. So we find here. First of all, sin A. We know that sin A equals to perpendicular upon hypotenuse. But kind confirmation for A perpendicular is 1. Okay, and hypotenuse is 2. And we have to know about that cos A. Cos A. It is equals to B upon H. And the value of B base root 3 and H root. Okay. Here sin C. The value of sin C equals to cos C. For C. The perpendicular is root 3. So it will equals to P by H equals to root 3 by 2. And cos C it will equals to B by H and that is equals to 1 by 1 by 2 only. Clear? Okay. So question is part number first. We have to know about sin A close window. Sin A cos C plus cos A sin C. Put the value. Sin A equals to 1 by 2. That's 1 by 2. Cos C. The value of cos C equals to 1 by 2. That's 1 by 2. Plus cos A. That's cos A. Root 3 by 2. 1 by root 3 by 2. Root 3 by 2 and sin C root 3 by 2. Root 3 by 2. So here 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4 plus root 3 into root 3 3 by 4
that's 1 plus 3 equals to 4 upon 4. equals to 1. That's your Answer. and second part is your Homework. homework. Clear? Yes. Right now. डिलीटेड पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। सबसे पहले ये कटा गया है। चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल से हटाया गया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट। तो हो गया पॉलिनोमियल क्या आपने क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर थर्ड से हटाया गया चैप्टर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटाया गया चैप्टर है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस। सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब जैसे सिचुएशनल प्रॉब्लम क्या होती है ना, कोई सिचुएशन आ जाए जैसे कहते हैं फादर की एज सन की एज के लिए सिचुएशन हो गई। इस पे बेस करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हटा दिए गए सर। मतलब एक तरह समझिए कि चैप्टर नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ज्यादातर हटा दिए, कुछ ही है बाकी सब हटा। चैप्टर नंबर 5 और मैंने बोला क्या कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस reducible to quadratic equation। reducible to quadratic equation, इसका reducible to quadratic equation मतलब होता है बदल जाना, हो जाना ना। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या हटाया गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसे आया था ना बीच में क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो। हाँ, तो पिगी बैंक यूज करती है, 5 रुपया रोज सेव करती है ना, ये डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए ना। इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड वो सब हटा दिए गए। और डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हटाए गए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम वाले टॉपिक से हटाए गए हैं। स्टार्टिंग में पहले टॉपिक में आपने nth टर्म पढ़ा, इसके बाद वाले में सम पढ़ा, तो जो सम वाला था उसमें से हटाया गया। ये नहीं पहले से आपको जितना वर्ड प्रॉब्लम कितना सब क्वार्टर ले नेक्स्ट वाले सेकंड टॉपिक से हटाया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका अगला चैप्टर है उसमें से एरिया और ट्रायंगल हटाया गया है। क्या हटाया गया है? एरिया और ट्रायंगल। इसके बाद अगला चैप्टर आता है ट्रायंगल। इस लिस्ट में जैसे दिया गया वैसे ही बोल रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में ट्रायंगल पहले देख लीजिए, इसमें 2 थ्योरम है, वो दोनों थ्योरम हटाई गई। थ्योरम ओपन करिए 6.4 है क्या? देखो थ्योरम 6.4 मेरी बुक में यहाँ कैंसिल होगा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 6 पॉइंट नहीं, ये पेज नंबर 100 मुझे बता रहे पेज नंबर 141 ओपन करिए, या आप जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें। पेज नंबर 141 पे थ्योरम 6.6। अब एक चीज तो आप इतने समझदार तो है कि जब थ्योरम 6.6 हटा दी गई उस पे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वो भी खत्म हो गया सब। इतना समझदार तो आप हैं, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद जो थेल्स थ्योरम हुआ करती थी पाइथागोरस थ्योरम जो थी उसका कन्वर्ज हटा दिया गया। मतलब आप पेज नंबर 146 पे थ्योरम 6.9 को हटा दिया गया। थ्योरम 6.9 को हटा दिया गया। ये 2 थ्योरम हटाए गए। ये चैप्टर नंबर 6 7 हो व्हाटएवर। सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है? अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री पहुंची बता दें। कंस्ट्रक्शन अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल।
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल के सिमिलर में दूसरा कंस्ट्रक्शन करना होता है, ये चैप्टर टॉपिक से हटा दिया गया। या आपसे पूछूंगा बताते रहिए। चलिए आ जाइए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसमें से क्या आता है वो देख लो। लिखा मोटिवेट the ratios whichever are defined at 0 degree and 90 degree, 0 degree and 90 degree। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें क्या हटाया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 होगी, ध्यान रखिए। 8.3 ये बेटा इतनी बदल से पढ़ा रहे हैं, चीजें याद ही रहेंगी। 187 पेज पे देखिए, दिख रहा है 187 पेज पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये लिखा है ना। ये आपके सिलेबस से हटाया गया, एक्सरसाइज मतलब 8.3 हट गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूजन लगता है इसलिए हुए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये टॉपिक हटाई गई है, टॉपिक अलग दिया है। चलिए मैं इसको देख लूंगा, जो भी होगा क्या हटाया गया मैं इसको बता दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये आइडेंटिटी में भी आता है और पीछे भी आता है ना, दोनों में आता है। अब डिपेंड करता है कौन सा हटाया गया है। आगे है क्या हो बच्चा, नेक्स्ट वे आप चल रहे हो। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर जिसमें कुछ नहीं हटाया गया, हाइट और डिस्टेंस का पूरा चैप्टर चलेगा। आफ्टर दैट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्लियर? इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर है? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक टॉपिक हटाया गया जिसका नाम था फ्रस्टम। सबसे लास्ट में फ्रस्टम। फ्रस्टम कभी आपने फ्लावर पॉट देखा है? गमला, उसी का शेप होता है। घर में जो बाल्टी होती है ना, पहले वो स्टील की बाल्टी आती थी, नीचे का वो हटा दिया गया, तो वो शेप जो होता है वो क्या कहलाता है? फ्रस्टम। पहले जो है कश्मीर में जो बड़ी बड़ी टोपियां लोग लगाते थे ना, ब्लैक कलर का जब सूट पहनते थे, बड़ी टोपी लगाते थे, वो क्या है? फ्रस्टम। क्लियर है? बर्थडे कैप आती है, अगर ऊपर से उसको काट दिया जाए तो जो शेप बचता है वो क्या कहलाता है? फ्रस्टम। क्लियर हो ना? ये हटा दिया गया सर। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, लास्ट सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक ये चैप्टर नंबर कौन सा? 14 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें से एक मेथड हटाया गया जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। नोट कर लीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट ऑन, अब ये स्टेप डेविएशन मेथड आ गई है फॉर मीन, तो क्या कंफ्यूज होंगे? और मीन, जब मीन पढ़ाए, क्योंकि मीन के लिए ही होता है, जब आपको मीन पढ़ाया जाएगा तो आपको 3 तरह के मेथड पढ़ाए जाएंगे। जो सबसे पहला मेथड होगा उसे आप कहोगे डायरेक्ट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और क्योंकि ये होता क्या है कि जब आप पढ़ते हो, वहां जब आपको पढ़ाया जाएगा, हर मेथड आपको बारी से पढ़ाएंगे, तो उसमें से 2 मेथड आपको पढ़ दिया, एक मेथड स्टेप वाला हटा देना लास्ट, ठीक है। अगला है टॉपिक जिसका नाम है, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। क्लियर? इससे कुछ नहीं हटाया गया। तो अब तो क्लियर होना, क्या हटा दिया क्या नहीं। अब अपनी स्टडी को आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। कल कुछ स्कूलों में मैंने देखा टाइम टेबल पहले के आने लगे हैं। उम्मीद करो कि आप जो है जब स्कूल गाइडलाइंस आ जाएंगी, सिस्टम सब कुछ सही थोड़ा होगा, तो आपके लिए एग्जाम शुरू होगा।
तो प्रिपरेशन स्टार्ट की रही है और हाफ ईयरली एग्जाम के बेसिस पर ही हो सकता है इंटरनल वगैरह का भी बात आने लगता है। भाई आप 9 दिन पढ़ रहे थे, जो टीचर आपको 9 दिन पढ़ा रहे थे आपके बारे में क्या जानते हैं बहुत अच्छा, आप जो परफॉर्मेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स वगैरह भी लोग रखते हैं, उसके भी एग्जाम एवरेज भी आता है क्योंकि आप जानते हो असेसमेंट के जो नंबर होते हैं वो भी कैसे डिवाइड होते हैं ना। आपके 3 एग्जाम हो रहे थे, तीनों एग्जाम में बेस्ट ऑफ 2 लेना होता है, तो इसी एग्जाम पे तो भी डिपेंड करता है। क्लियर हो? तो पढ़ाई स्टार्ट कर लो बच्चा। बोर्ड है 4 महीने में आपको बोर्ड की डेट रहेगी, हो सकता है बोर्ड 1 महीने आगे पीछे हो तो बोर्ड की बात है, वहां से न्यूज आएगी क्या होना है क्या नहीं। बट आप ये चीज जब तक नहीं होता है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को और ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पर दीजिए। मौसम भी इतना अच्छा आ गया है, रजाई के अंदर बैठे बैठे पढ़ाई के लिए हर चीज अवेलेबल आपको हो रही है ना, बैठ के करना भी नहीं, पढ़िए।